اے میرا سینہ کشادہ کر دے، میرا کام آسان بنا دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ وہ سر یہ ہمارا ہے پاکستان کا جو انہوں نے ریٹیلیشن کی ہے ایران کے خلاف۔ سر ایک میں اس پہ اگر اجازت ہو میں چھوٹا سا کانٹیکسٹ دینا چاہتا ہوں۔ سر اس پہ میں نے ریفلیکٹ کیا، میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ اصول پسند بات کروں۔ یہ جو مائٹ از رائٹ نا، کہ جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون اگر بین الاقوامی قانون ہم مان لیں تو پھر جو امریکہ نے ملک کی ساری دنیا میں جاریت کی ہے بغیر کسی پرووکیشن کے، ملکوں میں جا کے جنگ کی بمباری کی، ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، چاہے ایران کے پاس جواز تھا یا نہیں تھا۔ میں اصولی طور پر اس کی بہت سخت مذمت کرتا ہوں کہ کوئی ملک بھی کسی دوسرے ملک کے حدود کے اندر جا کے بغیر اعلان جنگ کیے اٹیک کرے اور واپس آئے۔ آپ نے ایک یہ بہت بڑا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے انڈیا کے لیے۔ تو میں ایک پرنسپل بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری سر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کانسپریسی تھیوریز بھی ہیں اور اسٹیٹڈ فیکٹ ہے۔ اسٹیٹڈ فیکٹ ہے، ایران کہتا ہے کہ یہ اسرائیل اور سی آئی اے کا بنایا ہوا گروہ ہے ٹیررسٹ کا، جو آ کے ہمارے ملک میں دہشت گردی کرتا ہے، ہم نے اس کو اڑایا ہے۔ پاکستان نے کہا کہ جی آپ نے بہت سخت خلاف ورزی کی ہے، بالکل صحیح کہا، انہوں نے ریٹیلیٹری اسٹرائکس کی، بالکل صحیح کی۔ یہ ہے فیکٹ ہمارے سامنے۔ اب ہے سر کانسپریسی تھیوریز کہ یہ جی امریکہ نے انسٹیگیٹ کرایا ہے، یہ اسرائیل نے کرایا ہے، یہ انڈیا نے کرایا ہے۔ ایک سب سے زیادہ ایک چیٹر چل رہی ہے کہ جی پاکستان نے خود کروایا ہے، پاکستان کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ ایرانین فارن منسٹر میں ڈیووس کا ان کا بیان ہے کہ ہم نے پاکستان کو بتایا تھا ان کو کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ پاکستان نے کہا ٹھیک ہے تم کرو گے، اس کے بعد ہم کریں گے اور ہم اس کو استعمال کریں گے الیکشن کے پوسٹ پون کرنے کے لیے یا کوئی سیکورٹی سچویشن، وہ ان کو تو نہیں بتایا۔ تو یہ کانٹیکسٹ ہے سر، اس پہ میں آپ کی رائے لے چاہتا ہوں۔ سوری ذرا ڈیٹیل میں جی دیکھیے اس طرح ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ آپ کے سوال میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے ملک دوسرے ملک کے ساورنٹی کو اس طریقے سے وائلیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس معاملے میں ڈیفینیٹلی ایران نے جو قدم اٹھایا ہے وہ بالکل غیر مناسب تھا، اور اس سے انفارچونیٹلی پاکستان اور ایران کے دشمنوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ لیکن ہمیں ان چیزوں کو کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہیے۔ ایران پر اندرونی طور پر بہت زیادہ پریشر تھا اور ابھی بھی ہے۔ مثلاً دیکھیے صرف کل کی بات لے لیں، 17 جنوری کی بات لے لیں، تو یہ جو جیش العدل جو ٹیررسٹ گروپ ہے، جو کہ پہلے جند اللہ کے نام سے آپریٹ کرتے تھے، اب انہوں نے اپنا نام بدل کر جیش العدل رکھا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایکچولی 2008 میں جنرل اسلم بیگ نے باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ جند اللہ کو امریکہ فائنینس بھی کرتا ہے اور ٹرین بھی کرتا ہے۔ یہ جنرل اسلم بیگ نے بات کہی تھی 2008 میں۔ جی سر بالکل مجھے یاد۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے اب جیش العدل کے نام سے، انہوں نے کل 17 جنوری کو زاہدان کی طرف اس کا اسلامک ریولوشنری گارڈز کا ایک کرنل اور اس کے ساتھ کچھ اور ساتھی گاڑی میں جا رہے تھے، تو اس پر جیش العدل نے حملہ کیا اور اس کرنل کو، جس کا نام کرنل حسین علی جاوید فرد ہے، اس کو شہید کر دیا۔ کل کی بات ہے یہ۔ اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد ایران کے ریولوشنری گارڈز نے ان کو اطلاع ملی کہ یہ جیش العدل کے کچھ ٹیررسٹ جو ہیں پاکستانی بارڈر سے ایران کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے ان ٹیررسٹ کو انگیج کیا، ایک کو مار دیا اور میرا خیال ہے کہ چند تو زخمی ہوئے، لیکن وہ ان کو اٹھا کر اپنے واپس پاکستان چلے گئے۔ تو یہ کل کی بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس کے جو پچھلے سال اور اس سے پہلے جتنے واقعات ہوتے رہے تھے، تو اور نہ صرف یہ کہ ریولوشنری گارڈز بلکہ ان کے پولیس اسٹیشنز پر بھی حملے ہوتے رہے۔ 10 جنوری کو حملہ ہوا تھا پولیس اسٹیشن پر، 15 دسمبر کو ایران کے پولیس اسٹیشن پر 11-12 پولیس والے مارے گئے تھے۔ ایک بہت لمبا چوڑا جو ہے نا یہ سلسلہ ہے کہ جیش العدل یہ اٹیکس کرتے رہے ہیں، اور ایران نے ہمیشہ سے پاکستان کو کہا بھی کہ جی آپ ان لوگوں کو کنٹرول کریں، ان کو یعنی یہ اس طرح کے حملوں سے روکیں، لیکن یہ کہ اس پر میرا خیال ہے کہ پاکستان نے کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ اچھا اب آئیے موجودہ سچویشن پر کہ ایران نے ایک دن پہلے حملہ کیا اور پاکستان نے ریٹیلیٹری اسٹرائک کر دی آج صبح کے وقت جو ہے ایئر فورس سے۔ اچھا میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایران کو ڈیفینیٹلی اس بات کا تو خدشہ تھا کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، کیونکہ جس طریقے سے پاکستانی فارن آفس سے اور باقی جو ادارے ہیں ان کے جو بیانات آ رہے تھے، لیکن ایران نے ان جہازوں کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے یا مارنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ میرا خیال ہے کہ صحیح وہ ہے قدم ہے، اور اب چاہیے کہ پاکستان اور ایران اس معاملے کو مزید نہ بڑھائے۔ اس سے دونوں جو ممالک ہیں ان کو سخت نقصان ہوگا، اور اس کا فائدہ صرف اور صرف امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کو ہوگا۔ تو اس لیے چاہیے کہ دونوں ممالک کے جو وہ ہیں ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں،
اور मैं चाहता हूं कि ईरान भी अब इसको मजीद ना बढ़ाए, क्योंकि इससे न ईरान को कोई फायदा है और न पाकिस्तान को कोई फायदा है। मैं एक और बात अर्ज करना चाहता हूं, पाकिस्तान में जो है ना, कल जो थे बड़े तुंद तेज लोगों के बयानात आ रहे थे कि जी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया गया है और हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप लोग जरा इस बात पर गौर करें। ये है सर वो एक साहब जिनके ये खोखा पोका खोका कामरान खान, बड़े इसने लंबी चौड़ी ट्वीट की है कि जी वाह 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 वाह, मुंह तोड़ जवाब दिया है हमने ईरान को, वाह 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 जी, पाकिस्तान मुत्तहिद हो गया है, वाह 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 जी। और जनाब अब तो इलेक्शन जो है ये तफरीक होगी, इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए। और इस हराम के पिल्ले के प्रोग्राम में वो अहमद बिलाल महबूब है, लॉयर है, डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी और लीगल राइट्स की बात करता है, वो भी इस बकवास ये कर रहा है कि जी इलेक्शन पोस्टपोन करो। सर जी, मैं इलेक्शन के पोस्टपोनमेंट की तरफ आता हूं, लेकिन पहले मैं अर्ज कर दूं, ये जो सॉवरेनिटी की बात है ना, तो जी सर। पाकिस्तान में लोग जो हैं सिलेक्टिव सॉवरेनिटी नहीं अप्लाई कर सकते। देखिए 9 अप्रैल 2022 को हमारी फौज ने और कम से कम बाजवा ने अमेरिका के कहने पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया। ये क्या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन नहीं है? वाह वाह, क्या जाइए यार पीछे जाइए आप, मैं आपको बताऊं कि 2002 से लेकर 2018 तक अमेरिका मुसलसल ड्रोन हमले करता रहा पाकिस्तान पर। जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने इन ड्रोन हमलों को रोका। क्या ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वो वायलेशन नहीं थी? मैं बताता हूं, 2011 को आप लें शुरू से। 2011 में 27 जनवरी 2011 को रेमंड डेविस जो सीआईए का एजेंट था, उसने 2 आईएसआई के एजेंट्स को लाहौर में सरेआम कत्ल किया। और हमारी आईएसआई क्या करती है जनाब, जो उस वक्त के जो डीजी थे आईएसआई के, वो इस बात पर वो थे कि किसी तरीके से रेमंड डेविस को जो उस पर कत्ल का इल्जाम लगाया है उससे छुड़ाएं, और उसने उन फैमिलीज पर प्रेशर डाला कि तुम ये केस विड्रॉ करो और पैसे हासिल करो, और रेमंड डेविस को मुल्क से निकलवा दिया। क्या ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर हमला नहीं है? आप फिर जाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 2011 की बातें हैं। 3 वाकयात 2011 में हुए जो बहुत ही तशवीशनाक हैं। 2 मई 2011 को अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान से आए, एबटाबाद पर हमला किया, आपके पीएमए से 1-2 मील के फासले पर, और उन्होंने जनाब पाकिस्तान की न सिर्फ सॉवरेनिटी की धज्जियां उड़ा दी, ऐसी की तैसी कर दी, उसामा बिन लादेन को कत्ल किया और उसको उठाकर ले गए, और पाकिस्तान ने जनाब किसी एक बंदे की भी कोई पूछ कुछ हुई, कोई आईएसआई की, कोई पाकिस्तानी आर्मी चीफ की, क्या किसी की भी? यानी इस तरह की वो खुल्लम खुला वायलेशंस करते हैं। तीसरा वाकया 26 नवंबर 2011 को अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स ने आकर सलाला में 2 चेक पोस्ट पर अटैक किया, 24 पाकिस्तानी शहीद हुए, 12 जख्मी हुए। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका से कोई वो कहा कि तुमने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया है? तो ये जो लोग सॉवरेनिटी की बात करते हैं ना कि जी हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो जनाब जो आपसे ताकतवर है आप जनाब उनके सामने लेट जाते हैं, और जो जो समझते हैं कि आप उनको वो कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, तो आप कर देते हैं, और फिर सॉवरेनिटी आपकी आपको याद आ जाती है। देखिए सॉवरेनिटी सिलेक्टिव नहीं होती, या तो आपकी सॉवरेनिटी है या आपकी सॉवरेनिटी नहीं है। अगर आप अपनी सॉवरेनिटी अमेरिका के लिए तो बेच देते हैं, कोई मसला नहीं है आपके, तो ये चीज जो है ना ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। और सर ये सॉवरेनिटी जो हाकमियत का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, हमारे आइन में, ये हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक ट्रस्ट के तौर पर ये दिया गया है। हमारी तो सॉवरेनिटी हम डायरेक्टली लिंक करते हैं कि पूरी कायनात की हाकमियत अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, और हमारा आइन कहता है कि पाकिस्तान की हाकमियत भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये ट्रस्ट है हाकमियत का, वो अवाम के पास है। तो अवाम की तो आपने धज्जियां उड़ा दी हैं सुबह शाम, आपने आइन की धज्जियां उड़ा दी, आपने दूसरे मुल्कों पे आपके ऊपर आके हमला किया, आपने इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है उसको आपने कैद किया, 200 उसके खिलाफ केस कर दिए। आपने तो हाकमियत की ऐसी की तैसी कर दी। कौन सी सॉवरेनिटी, कौन सी अवाम की मंशा, कौन सा फेयर एंड फ्री इलेक्शन, कौन सा अदल, कौन सा इंसाफ? ये 22 ग्रेड का घटिया गटर का ढक्कन आर्मी चीफ जो है पूरे मुल्क पर कब्जा कर गया, मुल्क को जला गया, भड़का गया, खाना जंगी की तरफ लेके जा रहा है, और हम कह रहे हैं जी हमें अपनी हाकमियत के ऊपर हमारा हमला हुआ है जी। हम तौबा तौबा सर, बड़ी अच्छी बात की। मैंने तो बिल्कुल आपने दूध का दूध पानी का पानी का। अच्छा सर इलेक्शंस के ऊपर आ जाएं। ये जो मैंने इसके एक और जो इन्होंने पाला हुआ है, एक नासूर कामरान खान, ये बड़ा छलांगे मार रहा है, ये इसके मुतालिक आप अच्छा सर ये इसके मुतालिक राय लोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मैं चैटर बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ मिलिट्री सर्कल से, अनकन्फर्म्ड है इसलिए चैटर कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हैदर मेहदी, ये हम मान ही नहीं सकते कि आसिम मुनीर को से ओके ना ली हो ईरानियों ने हमला करने की, उसने ओके दी है, और ये बहुत बड़ा मुनाफिक है, बड़ा डिसीवर है। ये मैं मान नहीं सकता कि ईरानियों ने हमें बगैर बताए हम पर हमला किया होगा। सर जी, जी। देखिए ना ये बात तो जो है उसने भी की थी, क्या कहते हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने डेवोस में ये बयान दिया है अपने इंटरव्यू में कि जी हमने पाकिस्तान को नोटिफ़ाई किया था। उससे बढ़कर जो पाकिस्तान के हवाले से जो बात है, जो आपने ये कामरान खान और दूसरे लोगों की बात की कि वो अब कह रहे हैं कि जी इन हालात में तो इलेक्शन हो नहीं सकते, क्योंकि अब वो इस वक्त मुल्क मुत्तहिद हो गया है और अब जो है वो इंतशार का खदशा है वगैरह। अरे भाई
खुदा के वास्ते इंतशार तो इतना इसी फौज ने, इसी बाजवा और आसिम मुनीर ने इस मुल्क में फैलाया है, और ये बात करते हैं कि जनाब इन हालात में तो इलेक्शंस नहीं हो सकते, बल्कि इन्हीं हालात में तो इलेक्शंस होने चाहिए ताकि अवाम की एक सही नुमाइंदा हुकूमत जो है वो बरसरे इक़्तिदार आए। देखिए, अब कल जो है पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होगी, जो इन्हीं हालात के हवाले से बातचीत करेंगे। मुझे खदशा है कि वो शायद ये फैसला कर लें कि जनाब पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते, हम उनको 2 महीने के लिए मुलतवी करते हैं, 3 महीने के लिए, फिर अगर एक मरतबा इलेक्शंस मुलतवी हो गए तो फिर भूल जाइए कि आपके मुल्क में 9-10 साल तक इलेक्शन कोई नहीं होंगे। तो पाकिस्तानी अवाम को इस बात पर खास तवज्जो देनी पड़ेगी कि वो कतअन इलेक्शंस को मुलतवी ना होने दें। हालांकि आपको आपके इल्म में है कि मेरी इलेक्शंस के हवाले से क्या राय है, कि भाई मैं नहीं समझता हूं कि ये हमारे मसाइल का हल है, लेकिन इलेक्शन ना कराना भी जो है ना उससे बड़ा मसला है। तो इसलिए इलेक्शंस कराना बहुत जरूरी है, ताकि उसके बाद जो है हालात एक सिमत बैठ जाएं, ताकि उससे आगे जो है ना पाकिस्तान बढ़ सके। सर, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ईसीपी की भी मीटिंग हुई है, हंगामी मीटिंग। उन्होंने भी चारों अपने इलेक्शन कमिश्नर्स को बुलाया है, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां, मिसाल के तौर पर पुलिस वगैरह को, और ये कहा है कि जी इस मौजूदा हालात में को हालत इलेक्शन का क्या है, जो सिक्योरिटी है। अब ये इन्होंने ड्रामा, ये सर इसकी अंग्रेजी तर्जुमा मैं पढ़ के, अंग्रेजी तर्जुमा इसलिए है कि इसकी उर्दू जो वो अजीब किस्म के लफ्जों में लिखी हुई है, पागल आदमी है। वो कहता है जी पाकिस्तान बहुत जबरदस्त इधर दहशतगर्दी फैल गई है, वर्स्ट, ये कहता है आजकल वर्स्ट टेररिज्म है, और इस वजह से मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इसलिए कि जो हमारी इस वक्त मुनज़्ज़म हो गया है मुल्क, यूनिटी वो टूट जाएगी। हमारी फौज को बॉर्डरों में मौजूद होने की जरूरत है, इसलिए हमें इस फौज को, लोगों को सड़कों पे इलेक्शन की हिफाजत नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए जनाब इलेक्शन को ख़त्म करें। ये है सर इन लोगों की दीन ईमान। सर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम कहते हैं कि वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि इन लोगों का हिसाब अल्लाह ताला अगर हमारे सामने ले कर दे और हमें दिखा दे, तो शायद ये हमें बाजवा सूली पे लटकता हुआ नजर आ जाए, आसिम मुनीर लटकता नजर आ जाए, इस जैसे कमरान खान, फाइज ईसा, ये काकड़ा, ये सिकंदर सुल्तान राजा, इस किस्म के लोगों को ऐसी सजा मिलते हुए नजर आए कि कोई 100 साल तक लोग ना सोचे। जिस तरह भुट्टो को इन्होंने हैंग किया जब फौज ने, तो तमाम सियासतदान जो है ना सर उनको सांप सूंघ गए। तो बिल्कुल। फौज के अंदर सर लटकना जरनैलों का बहुत जरूरी है, कि इस फौज को समझ आ जाए कि तुम ये हरकतें नहीं कर सकते सर। जी, जी। बेसिकली देखिए, अल्लाह ताला जो है ना वो उस वक़्त अल्लाह ताला की इंटरवेंशन होती है जब लोग अपने तौर पर अपने मुकम्मल जो है ना कोशिश करें और अपनी लिमिट्स पे पहुँच जाएँ। जब वो अपनी लिमिट्स पे पहुँच जाते हैं, उसके बाद उनकी जो ह्यूमन पोटेंशियलिटी है, वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकती, तो तब अल्लाह ताला इंटरवीन करता है। ये हम हम्म, देखते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हालत में भी, मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के साथ जो उनका था, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंग बदर का वाक़या है। देखिए, जब ह्यूमन पोटेंशियलिटी अपनी एब्सोल्यूट लिमिट पे पहुँचती है और उसके हम्म, बाद वो और मज़ीद मज़ीद कुछ नहीं कर सकते, तो हम्म, तब जो है ना अल्लाह ताला इंटरवीन करता है। हमारे अवाम खामोश बैठे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। देखिए, इमरान खान बेचारा जेल में सड़ रहा है, इन्हीं की खातिर, इन्हीं की खातिर सऊबतें झील रहा है। उसकी तो आराम की ज़िंदगी थी, लेकिन ये कि अवाम जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। नारेबाज़ी बस इक्का-दुक्का कोई कर लेता है, ठीक है, कुछ मतलब कि ना पीटीआई के जो बेचारे जो 30,000 लोग जो हैं जेलों में पड़े हुए हैं, लेकिन ये कि सिर्फ़ ये 30,000 लोगों की तो बात नहीं है ना, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की बात है। वो कहाँ पर हैं? वो क्यों नहीं निकल कर आते? वो क्यों नहीं आकर इमरान खान की खातिर जिद्दोजहद करते? वो क्यों नहीं आते अपने हक के लिए लड़ने के लिए? ये चीज़ें हैं जो लोगों को ज़हन में रखनी चाहिए। अगर वो अल्लाह ताला की इंटरवेंशन को चाहते हैं, तो वो अपनी पहले कोशिश करें, तब अल्लाह ताला की इंटरवेंशन जो है शामिल-ए-हाल होगी।